आइज़िया 33 चैप्टर 34 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे इंग्लिश में, बाद में हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मुझे बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, मैं ये वचन समझ सकूं, मेरे चित्त में इसको मैं पकड़ सकूं और मेरा जीवन बदलता जाए और ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में सेट कर दिया जाए, फिट एंड फिक्स कर दिया जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन। God's judgment against the enemies of the church. Chapter 33, first verse. Isaiah chapter 33, first verse. Woe to thee that spoilest, and thou wast not spoiled, and dealest treacherously, and they dealt not treacherously with thee. When thou shalt cease to spoil, thou shalt be spoiled, and when thou shalt make an end to deal treacherously, they shall deal treacherously with thee. O Lord, be gracious unto us. We have waited for thee. Be thou their arm every morning, our salvation also in the time of trouble. At the noise of the tumult, the people fled. At the lifting up of thyself, the nations were scattered. And your spoil shall be gathered like the gathering of the caterpillar, as the running to and fro of locusts shall he run upon them. The Lord is exalted, for he dwelleth on high. He hath filled Zion with judgment and righteousness. And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times, and strength of salvation. The fear of the Lord is his treasure. Behind their valiant ones shall cry without. The ambassadors of peace shall keep bitterly. The highways lie waste. The wayfaring may ceaseth. He hath broken the covenant. He hath despised the cities. He regardeth no man. The earth mourneth and languisheth. Lebanon is ashamed and hewn down. Sharon is like a wilderness, and Bashan and Carmel shake off their fruits. Now will I rise, saith the Lord. Now will I be exalted. Now will I lift up myself. Ye shall conceive chaff. Ye shall bring forth stubble. Your breath as fire shall devour you, and the people shall be as the burnings of lime, as thorns cut up shall they be burnt in the fire. Hear, ye that are far off, what I have done, and ye that are near, acknowledge my might. The sinners of Zion are afraid. Fearfulness hath surprised the hypocrites. Who among us shall dwell with the devouring fire? Who among us shall dwell with everlasting burnings? He that walketh righteously and speaketh uprightly. He that despiseth the gain of operations, that shaketh his hands from holding of bribes, that stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil. He shall dwell on high. His place of defense shall be the munitions of rocks. Bread shall be given him. His waters shall be sure. Thine eyes shall see the king in his beauty. They shall behold the land that is very far off. Thine heart shall meditate terror. Where is the scribe? Where is the receiver? Where is he that counted the towers? Thou shalt not see a fierce people, a people of a deeper speech than thou canst perceive of a stammering tongue, that thou canst not understand.
Look upon Zion, the city of our solemnities. Thine eyes shall see Jerusalem, a quiet habitation, a tabernacle that shall not be taken down. Not one of the stakes thereof shall ever be removed, neither shall any of the cords thereof be broken. But there the glorious Lord will be unto us a place of broad rivers and streams, wherein shall go no galley with ours. Neither shall gallant ship pass by. For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king, he will save us. Thy tacklings are loosed, they could not well strengthen their mast, they could not spread the sail. Then is the prey of a great spoil divided. The lame take the prey, and the inhabitant shall not say, I am sick. The people that dwell therein shall be forgiven their iniquity. Chapter 34 Judgments wherewith God avenges his church. The certainty of the prophesy. First verse. Come near, ye nations, to hear and hearken, ye people, let the earth hear, and all that is there in the world, and all things that come forth of it. For the indignation of the Lord is upon all nations, and his fury upon all their armies. He hath utterly destroyed them, he hath delivered them to the slaughter. Their slain also shall be cast out, and their stink shall come up out of their carcasses, and the mountains shall be melted with their blood, and all the host of heaven shall be dissolved, and the heavens shall be rolled together as a scroll, and all their host shall fall down as the leaf falleth off from the vine, and as a falling fig from the fig tree. For my sword shall be bathed in heaven, behold, it shall come down upon Idumea and upon the people of my curse to judgment. The sword of the Lord is filled with blood, it is made fat with fatness, and with the blood of lambs and goats, with the fats of the kidneys of rams. For the Lord hath sacrificed in Bozrah, and a great slaughter in the land of Edomia, and the unicorns shall come down with them, and the bullocks with the bulls, and their land shall be soaked with blood, and their dust made fat with fatness. For it is the day of the Lord's vengeance, and the year of recompenses for the controversy of Zion. And the streams thereof shall be turned into pitch, and the dust thereof into brimstone, and the land thereof shall become burning pitch. It shall not be quenched night nor day. The smoke thereof shall go up forever from generation to generation. It shall lie waste, none shall pass through it forever and ever, but the cormorant and the bittern shall possess it. The owl also and the raven shall dwell in it, and he shall stretch out upon it the line of confusion and the stones of emptiness. They shall call the nobles thereof to the kingdom, but none shall be there, and all her princes shall be nothing, and thorns shall come up in her palaces, nettles and brambles in the fortresses thereof, and it shall be an habitation of dragons, and a court for owls. The wild beasts of the desert shall also meet with the wild beasts of the island, and the satyr shall cry to his fellow, the screech owl also shall rest there, and find for herself a place of rest. There shall the great owl make her nest, and lay and hatch, and gather under her shadow. There shall the vultures also be gathered, every one with her mate.
Seek ye out of the book of the Lord, and read. No one of these shall fail, none shall want her mate. For my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them. And he hath cast the lot for them, and his hand hath divided it unto them by line. They shall possess it forever, from generation to generation shall they dwell therein. यशायाह की भविष्यवाणी 33 अध्याय पहले वचन से। BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं। सहायता के लिए प्रार्थना। हाय तुझ नाश करने वाले पर जो नाश नहीं किया गया था, हाय तुझ विश्वासघाती पर जिसके साथ विश्वासघात नहीं किया गया। जब तू नाश कर चुके तब तू नाश किया जाएगा, और जब तू विश्वासघात कर चुके तब तेरा विश्वासघात किया जाएगा। हे यहोवा, हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोहते हैं। भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर। हुल्लड़ सुनते ही देश देश के लोग भाग गए। तेरे उठने पर अन्य जातियां तितर बितर हुई। जैसे टिड्डियां चट करती है वैसे ही तुम्हारी लूट चट की जाएगी, और जैसे टिड्डियां टूट पड़ती है वैसे ही वे उस पर टूट पड़ेंगे। यहोवा महान हुआ है, वह ऊंचे पर रहता है। उसने सियोन को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया है, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। देख, उनके शूरवीर बाहर चिल्ला रहे हैं। संधि के दूत बिलख बिलख कर रो रहे हैं। राजमार्ग सुनसान पड़े हैं, उन पर यात्री अब नहीं चलते। उसने वाचा को टाल दिया, नगरों को तुच्छ जाना, उसने मनुष्य को कुछ न समझा। पृथ्वी विलाप करती और मुरझा गई है। लबानोन कुम्हला गया और उस पर सियाही छा गई है। शारोन मरुभूमि के समान हो गया, बाशान और करमेल में पतझड़ हो रहा है। परमेश्वर के शत्रुओं को चेतावनी। यहोवा कहता है, अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा, अब मैं महान ठहरूंगा। तुझ में सूखी घास का गर्भ ठहरेगा, तुमसे भूसी उत्पन्न होगी। तुम्हारी सांस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी। देश देश के लोग फूंके हुए चूने के समान हो जाएंगे, और कटे हुए कटीले पेड़ों के समान आग में जलाए जाएंगे। हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कंपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी न बुझेगी? जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी न होगी। उज्जवल भविष्य 17 वचन से आगे। तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। तू भय के दिनों को स्मरण करेगा। लेखा लेने वाला और कर तौल कर लेने वाला कहाँ रहा? गुम्मटों का गिरने वाला, गिनने वाला कहाँ रहा? जिनकी कठिन भाषा तू नहीं समझता और जिनकी लड़खड़ाती जीभ की बात तू नहीं बूझ सकता, उन निर्दयी लोगों को तू फिर न देखेगा। हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर। तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा न जाएगा और न कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहाँ महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डांड वाली नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएगा। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हकीम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। तेरी रस्सियाँ ढीली हो गई,
वे मस्तूल की जड़ को दृढ़ न रख सकी और न पाल को तान सकी। तब बड़ी लूट छीन कर बांटी गई। लंगड़े लोग भी लूट के भागी हुए। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के शत्रुओं को दंड। 34 अध्याय पहले वचन से आगे। हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है, और उनकी सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई है। उसने उनका सत्यानाश होने और संहार होने को छोड़ दिया है। उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे, और उनके शवों को दुर्गंध उठेगी। उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। आकाश के सारे गण जाते रहेंगे, और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। जैसे दाख लता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गुण धुंधले होकर जाते रहेंगे। क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है। देखो, वह न्याय करने को एदोम पर और जिन पर मेरा शाप है उन पर पड़ेगी। यहोवा को तलवार लहू से भर गई। यहोवा की तलवार लहू से भर गई है। वह चर्बी से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के लहू से और मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है। क्योंकि बोसरा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में बड़ा संहार हुआ है। एक यहाँ लाइन ध्यान रखना, यहोवा की तलवार लहू से भर गई है। वह चर्बी से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के लहू से और मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है। क्योंकि बोसरा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में बड़ा संहार हुआ है। तृप्त हुई है, ऐसा लिखा है। ओके, तृप्त हुई है यानी तलवार एक स्पिरिट है जिसको तृप्त किया जाता है। लहू चीर फाड़ करके उसे तृप्त किया जाता है। ओके, तो तलवार क्यों चलाया जाता है, क्यों उसको यूज़ किया जाता है, चाकू छुरा ये सब क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि उसके अंदर प्यास है मनुष्य के लहू को, किसी का भी लहू या मांस को वो चखना चाहती है। ओके, ये स्पिरिचुअली आपको समझ में आना चाहिए। तलवार ये स्पिरिट है। ओके, ये हम फिजिकली हथियार तो देखते हैं, लेकिन वो फिजिकल हथियार नहीं है, वो स्पिरिचुअली एक शक्ति है, सही कह सकते हैं। ये स्पिरिट है, ये स्पिरिट है। ओके, तो ध्यान रखिए, ये एक स्पिरिट है, ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये स्पिरिट है। इसके लिए परमेश्वर ने वचन में भी कहा कि वचन दो धारी तलवार है। ओके, तलवार को आप मत सोचिए, देखो तलवार युद्ध के लिए यूज़ किया जाता है। तलवार घर में कोई फलों को काटने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, तलवार से युद्ध करते हैं। वो एरिया ऑफ लाइफ में तलवार एक स्पिरिट है, एक स्पिरिट है, ध्यान रखो इस बात को। ओके, ये मैं आपको वॉरफेयर टीचिंग्स के वक्त में आपको यूज़ करूँगी मेरे प्रार्थना में, तब आपको समझ में आएगा। 7 वचन से आगे, उनके संग जंगली सांड और बछड़े और बैल वध होंगे, और उनकी भूमि लहू से भीग जाएगी, और वहाँ की मिट्टी चर्बी में अघा जाएगी। क्योंकि पलटा लेने को यहोवा का एक दिन और सियोन का मुकद्दमा चुकाने का एक वर्ष नियुक्त है। और एदोम की नदियाँ राल में और उसकी मिट्टी गंधक में बदल जाएगी। उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। वह रात दिन न बुझेगी, उसका धुआं सदैव उठता रहेगा। युग युग वह उजाड़ पड़ा रहेगा, कोई उसमें से होकर कभी न चलेगा। उसमें धनेश, पक्षी और शाही पाए जाएंगे, और वह उल्लू और कौवे का बसेरा होगा। वह उस पर गड़बड़ की डोरी और सुनसानी का साहुल तानेगा। वहाँ न तो रईस होंगे और न ऐसा कोई होगा। देखो, ये ध्यान दो, कौन से क्या करेगा वो? 11 वचन, ये भाग देखो, वह उस पर गड़बड़ की डोरी और सुनसान का साहुल तानेगा। ओके,
जब मेरे घर में कुछ काम हो रहा था, जब रस्सियों का बांधने का और खोलने का ऐसा कुछ काम चल रहा था मेरे घर के अंदर, वो कोई इंसान करके दे रहा था मुझे, तो वो इंसान का स्पिरिचुअलिटी मैंने सेंस कर लिया था, इसके अंदर कोई स्पिरिचुअल रीज़न है जो ये ऐसा कर रहा है। ओके, उसने खुद होके रस्सियों को लाया, ऐसे वहाँ से यहाँ से करके बांध के दिया। अच्छा लगा मुझे, मेरा तो काम चल गया, उससे सब ठीक था, लेकिन मैंने उसके पीछे एक स्पिरिचुअलिटी को सेंस किया था। ओके, देखो क्या है, वो डोरी गड़बड़ की और सुनसानी की साहुल ताने का। तो आपको पता नहीं चलता है जब लोग आपके घर के अंदर काम करते हैं या आपके सामने कुछ ऐसे काम किया जाता है, आपको फिजिकली जो दिखता है वो स्पिरिचुअली वो क्या काउंटिंग करते हैं उसके बारे में, उसका आपको मालूम नहीं रहता है। ये वचन में से आप समझो। ओके, वह उस पर गड़बड़ी की डोरी और सुनसान का साहुल ताने का। ठीक है, तो वो काम फिजिकली करते हैं, लेकिन उस काम को क्या अंजाम में लेकर आने का है, वो अंजाम गड़बड़ी का ठहराते हैं, वो अंजाम सुनसानी का ठहराते हैं। इसके लिए आपके घर के अंदर कोई भी चीज़ स्थिरता नहीं रहती है, गड़बड़ 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 रहती है और सुनसानी फैली रहती है, एकदम मुर्दों के जगह जैसे होती है वैसे आपके सन्नाटे छाए हुए रहते हैं। ओके, तो ये क्या है, क्योंकि इस प्रकार से किसी ने आपके घर के अंदर कुछ बांध के रखा होगा, तो आपने इसको तोड़ना है। और तलवार के बारे में मैंने आपको बताया, जो मांस और लहू की प्यासी तलवार है उसको हमने जला देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, उसकी प्यास को हमने डिस्ट्रॉय कर देना है। ओके, वो हमको फाइंड आउट नहीं करना है, वो हमको ढूंढ नहीं पाना है। ऐसे आपको वॉरफेयर प्रेयर्स में यूज़ करने का। ओके, 13 वचन से आगे, उसके महलों में कटीले पेड़, गढ़ों में बिच्छू, पौधे और झाड़ उगेंगे। वह गिदड़ों का वास स्थान और शत्रु मुर्गों का आंगन हो जाएगा। वहाँ निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर बसेंगे और रुआर जंतु एक दूसरे को बुलाएंगे। वहाँ लिलित नामक जंतु वास स्थान पाकर चैन से रहेगा। वहाँ मादा उल्लू घोंसला बनाएगी, वे अंडे देकर उन्हें सेएंगी और अपनी छाया में बटोर लेंगी। वहाँ गिद्ध अपनी साथिन के साथ इकट्ठे रहेंगे। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है। और उसी की, देखो क्या बोला, क्योंकि मैंने अपने मुंह से आज्ञा दी है ऐसा होने के लिए। ओके, तो इविल वर्कर्स जो रहता है, दुष्टता के जगत के लोग भी ऐसे ही काम करते हैं। वो सामने तो डोरी बांध रहे होते हैं, हमारे काम कर रहे होते हैं, हमको लगता है वो हमारे घर के अंदर के फर्नीचर में कीले ठोक रहे या लकड़ियों को जोड़ रहे या कुछ ऐसे काम कर रहे, लेकिन उसके पीछे वो कुछ आज्ञाएं दे रहे होते हैं। ओके, वो आज्ञाएं दे रहे होते हैं और फिर आपको फर्नीचर तो मिल जाता है। ओके, वो आपके काम तो बन जाते हैं, रस्सी डोरे बांधने का जो भी काम है वो तो हो जाता है, लेकिन उसके पीछे नतीजा क्या छोड़ा है उन्होंने, उसको रद्द करना है आपने। ओके, देखो यहोवा ने मुंह से आज्ञा दी, आपने आज्ञा देना है। मेरे घर के अंदर जो कुछ भी अशुद्धता का बोला गया है, रोपा गया है, अंजाम लगाया गया, यीशु नासरी के नाम से मैं उसे रद्द कर देती हूँ। ओके, आपने उसको आज्ञा देना है, शांति स्थिरता उसके अंदर से बहने लगे। ओके, गड़बड़ियाँ उसके अंदर से हट जाए। ओके, हर प्रकार के शत्रु ने बोले हुए शब्द मिटा दिए जाए और परमेश्वर कहता है वही शब्द हम में बने रहे। इतना तो आप बोल सकते हैं। ओके, और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया। देखो, बोलना अलग बात है, मुंह से आज्ञा दिया, इकट्ठा करने के लिए आत्मा ने किया। समझ में आया आपको? तो आप बोलने से क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना लोग, क्या होने वाला है, बाइबल पढ़ने से क्या होने वाला है, प्रार्थना करने से क्या। जब आप बोलेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर पवित्र आत्मा उसके अनुसार सब कुछ करके देता है। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं तो पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा करके क्या फ़ायदा है। अब बोलना है,
आज्ञा लगाना है और फिर पवित्र आत्मा इकट्ठा करता है। ठीक है, उसी ने उनके लिए चिट्ठी डाली, उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस देश को उनके लिए बांट दिया है। वह सर्वदा उनका ही बना रहेगा और वे पीढ़ी से पीढ़ी तक उसमें बसे रहेंगे। तो परमेश्वर भी डोरी डालता है। देखा, परमेश्वर भी चिट्ठी के बारे में बता रहा है, परमेश्वर भी बांट लेने के बारे में बता रहा है। सब कुछ वो शत्रु जो करते हैं उसके विरोध में हमने भी करना है। परमेश्वर, मैं शांति की डोरी डालती हूँ। परमेश्वर, मैं शांति का साहुल लगाती हूँ। परमेश्वर, मैं तेरे धार्मिकता के रास्तों को मैं खोलती हूँ। मैं तलवार से उन सारे डोरियों को काट देती हूँ जो सुनसान के लिए बांधी गई है, जो एकदम गड़बड़ियों के लिए लगाई गई है, मैं उसे निकाल देती हूँ। और वहाँ पर हर्ष का, आनंद का नाद सुनने के लिए मिलेगा। वहाँ पर हर्ष का तेल, अभिषेक वहाँ पर उतरेगा। ऐसा आपको बोलना है। ओके, तो हम बोलेंगे। ओके, तो बोलने का स्ट्रैटेजी किया जाता है माय फ्रेंड्स। ओके, बोलने के प्लान्स किए जाते हैं। उसको अपने प्लान में बिठाना है कि आज के दिन में मैंने क्या बोलना है। आप प्लान में डालिए और फिर देखिए, जब आप बोलेंगे उसके बाद परमेश्वर का आत्मा उस बोले हुए शब्द के अनुसार करेगा। तो आज से लेसन नंबर 2 स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, ओके, आपने क्या करना है, आप एक प्लान बनाना है। आज मैं कौन सा चीज़ आज स्थिर होने के लिए देखना चाहती हूँ। किसी का घर स्थिर करना चाहते हैं आप, कोई इंसान को बचाना चाहते हैं आप, किसी के करियर को बचाना चाहते हैं, किसी का मैरिड लाइफ आपको सही करके देना है, किसी के कोई भी जो भी व्यवस्था, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसका स्ट्रैटेजी बनाओ। आप उसके ऊपर शब्दों को क्या क्या बोलना चाहते हैं वो सब बाइबल में से निकाल के रखो और फिर उसको लेके पूरा बोलो और फिर देखो पवित्र आत्मा उसके अनुसार काम करेगा। हालेलुया। आपको आज्ञा देना है। मैं आज्ञा करती हूँ ये शब्दों को पूरा होने का। मैं आज्ञा करती हूँ ये शब्दों को मैंने बोला हुआ पवित्र आत्मा इसमें से काम करेगा। मैं आज्ञा देती हूँ ये शब्दों के अनुसार होने का। इस प्रकार से आपको वो शब्दों को बोल देना है। बस दैट्स फिनिश। आप जीतते रहेंगे, जिंदगी भर आपको कोई डगमगाएगा नहीं फिर। हालेलुया। ये रूट पॉइंट है, ये जड़ पकड़ने वाली बात है। ये पकड़ लीजिए, फिर आपको ज़्यादा ले हैंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा आपको पास्टर्स, लीडर्स और किसी काउंसलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने अंदर सब कुछ समेट कर बैठे हुए रहेंगे। ओके, थैंक यू जीसस कि आपने हमें इस लेसन्स को सिखाया। जो वचन में से हमको चाहिए था वो हमें गंभीरता हमारे अंदर लाया कि परमेश्वर का वचन कैसे मुंह से आज्ञा में बोलना है। धन्यवाद, इस सुधार को हम स्वीकारते हैं कि हमने अभी तक बोला नहीं था और अब हम बोलना शुरू करते हैं। और पिता, हम तेरे आत्मा के कामों को बड़े पैमाने में तेरे महिमा के लिए देख पाएंगे। विश्वास के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, नासरी यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन आमेन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 3 chapter 1 verse से 8 verse, 1 Kings 7 chapter। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 1 वचन से 8 वचन और पहले राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय। हम 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान अपने अकेले में बैठकर व्यक्तिगत समय में पढ़ना है। अभी आपको समझ में आया ना कि आपको मुंह से बोलने के लिए कुछ शब्दों की ज़रूरत है माय फ्रेंड्स। तो आपने ये अकेले में बैठकर जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपने इसमें से अभी नोट्स नहीं, आप सीधे वो सारे वचनों को ही नंबर वाइज लिख लेना है। जॉन्स गॉस्पल चैप्टर 1 सो एंड सो वर्स, बस लिख लेना है। जो आप चाहते हैं कि ये बोलने की ज़रूरत है, लिख लेना है, पूरा इकट्ठा कर लेना है और फिर उसको पूरे दिन उसको बोलते रहना है माय फ्रेंड्स। अगर आप बोलते रहेंगे ऐसा, आत्मा काम करेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। जो वचन के अंदर लिखा है वो मतलब को वो आपके जीवनों में खोल देगा माय फ्रेंड्स। ओके, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मसीहों के ऊपर, मुंह के अंदर से वचनों को बोलना, पवित्र आत्मा को उसमें से काम करने देना। हालेलुया। अपनी जिम्मेदारी निभाइए माय डियर फ्रेंड्स। ओके, और अकेले में पर्सनल व्यक्तिगत समय में प्राप्त कीजिए ऐसे वचनों को प्लीज़, क्योंकि बहुतों को आप लोगों की ज़रूरत है।
ठीक है। तो आप इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है, आपने इसका लाभ उठाना है। अपने व्यक्तिगत पर्सनल टाइम में इसे लीजिए अपने अंदर, ये स्टडीज को, ठीक है। और फिर देखिए परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता में मौजूद है, वो आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं डाला है, वो आपको सहायता करेगा, वो इंटरेस्टिंग बनाएगा आपका ये सेशन, ओके। और पवित्र आत्मा का लाभ निश्चित हमने लेना है। और परमेश्वर आपको 2 साल के अंत में देखिए किस प्रकार से बड़े पैमाने में इस्तेमाल करने का बर्तन मानते हुए ले लेगा अपने राज्य के कामों में। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू आबा, तूने फिट एंड फिक्स किया हमें। तुझे धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, तूने हमें व्यवस्थित किया, ऑर्डरलीनेस, डिवाइन ईश्वरीय व्यवस्थितपन में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लाया। जैसा मांगा हमको वैसा तूने बढ़ चढ़ कर दिया। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा अपनी विश्वास योग्यता के लिए। आपकी विश्वास योग्यता ने हम पर पिता जाहिर किया तेरे सारी जो हमने जवाबों में मांगी बातें थी। धन्यवाद करते हैं। आगे और भी हमें व्यवस्थित कर, फिट एंड फिक्स कर, हमें ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन।